Hello everyone, I am Avdesh Gupta, Assistant Professor, Department of Electronics Engineering in MITS Gwalior. We have discussed what is signals. So signal is any function, any quantity that carries information of any physical phenomena. Okay, so we have discussed this, and that signal can be a function of one or more than one independent variable. Okay, this independent variable not necessary to be time, it could be space or length. Okay, so we have to discuss this course outcome. After the completion of this course, you will be able to explain the basic signals that we are studying right now. Okay, you will be able to explain basic signals and their mathematical descriptions. You will be able to analyze the spectral characteristics of the continuous time and discrete time signals. You will be able to analyze the properties of continuous time and discrete time signals. You will be able to analyze the properties of linear time invariant, that is LTI, continuous time and discrete time systems using transformation like Laplace transformation and Z transformations. You will be able to calculate the convolution and the response of the continuous time and discrete time systems with respect to input, and you will be able to design the block diagram of any LTI system corresponding to given differential or differential equation. Okay. So these are the course outcome when you study this signals and system course. Okay. So now discuss the next topic. Okay. We have discussed about the classification, continuous time and discrete time signals. Then we have discussed analog and digital signals, and after that we left the classification part and we jump to the some signals part. Okay, like unit step, unit impulse, ramp. Then we have discussed the relation between them, that if you differentiate ramp you will get unit step, and if you differentiate unit step you will get unit impulse. Okay, and the inverse process, if you running integral, if you take running integral of minus infinity to t of impulse function, then you will get unit step, and if you take running integral of unit step then you will get ramp. Okay, so these things we have discussed. Now you have studied the signum function. Okay, so in the last lecture we have studied about the signum function. So now we will see a new software, or we can say that a new app that you can install in your mobile also, that is Desmos. Go to the Google and write desmos.com. Okay, or type Desmos, DESMOS. So this is free app. Okay. It will open such kind of window. This Desmos is a graphical calculator. Okay, you can create any graph, not all, like you cannot create unit step or impulse in this graph, but most of the graph you can create, and we will learn a lot of things by using Desmos. Okay, because the signal system subject is all about function and graph. Okay, the function which give you information is the signal. Okay, so we have to know much about graph. If you want to learn some graph, you can use this kind of app.
You can go to the Google Play Store and download Desmos. It is also available in mobile, okay, Android. So for example, we have to write xt equals to t. So this is a linear graph, okay. This is a linear graph, t plus 2, okay. So you can imagine, okay, to play with the graph, this kind of application is very useful. In the last session, we have made a signum function. So let's see if there is signum function available here. So there is a keyboard. Let me show. So there is a keyboard, keypad. Just open this keypad. Okay. And in the keypad, you can go to the functions. You can use miscellaneous, and there is a signum function, sign. You can put here signum t, okay. So if you use x, here we are using x, okay. So it is making the graph with respect to x, okay. So we have to use yt, okay. To make a proper graph, try using this yt, okay. This is some disadvantage of this graphical calculator. If you write xt, it will make the graph with respect to x-axis, okay. So yt, y is the function of t, that is signum of t. You can see we have made this kind of graph, okay. This is plus 1 because this column is 5. You can zoom, okay. So this is plus 1 for t greater than 0, minus 1 for t less than 0, and discontinuous at t equals to 0. So this is signum t, okay. You can make multiple graphs also, okay. For example, if I create another function like z of t equals to, there is a function exponential function, here it is exponential function. Exponential use bracket of minus t. Let's see the graph. You can see this blue graph, here it is. So the blue one shows the exponential part and the red one shows the signum function. You can click here to close first graph, okay. You can close here to close the second graph, okay. So if you want to see this one only, second one, you can click again, okay. So this one shows the exponential reducing graph, you can see, okay. So in this way, Desmos help us a lot to understand the signals, okay. In our study, we will use again and again, even in the Fourier series and even in the Fourier transform, we will see how we can utilize this Desmos graphical tool in our study. So in the last lecture, we have studied about the triangular pulse, okay. We have studied about the triangular pulse. Now we will study about Gaussian pulse. So Gaussian pulse can be given by e to the power minus a into t square, e to the power minus t square, okay. So this function or this signal is known as Gaussian pulse. It just look like a bell shaped curve, okay. If you put t equals to 0, its value will be e to the power 0 and value will be 1. And this is this function is symmetrical about
y-axis. Okay, if you put t in place of t, if you put minus t, the function will not change. That means it is even function and it will be symmetrical about y-axis. You can see as t increases, it will be go downward. Okay, so it just look like bell shape. This is a very important graph when you study your analog communication subject in the next semester, or in the digital communication in the next year. You will find this function appear again and again when you study about the noise. So ft equals to, this function equals to e to the power minus at square. Okay, very important for communication system, and it is look like bells. Okay, now I will make this graph by using Desmos. Let's use this graph. Let's make a third graph. Let's put the name GT for the Gaussian. GT equals to for exponential. Okay, exponential, for exponential you have to use exp in the bracket. You have to use minus t. Here it is square. Okay, after t you can use square. So this graph you can see green one. Let's close this blue one by clicking here. You can see this graph by zooming. This bell shaped graph. Okay, so this function is nothing but Gaussian function. Here a is 1. Okay, now let's copy this and paste here. Name G2t and let's say G1t. Okay, let's put 2 here. So what change you can observe here? If a increases, what change you can see? Okay, let me make one more graph. Let's say G3t and put 3 here. So in the green one, a is 1, here a is 1, here a is 2, here a is 3. So increasing this a, what you can observe? The width, yes, it is known as variance. Okay, the width is keep on reducing. Okay, जिसका स्प्रेड है वो रिड्यूस होता जाए. ओके, ये ग्रीन वन है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक इतना ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है. ओके, अगर मैं 0.5 पे कैलकुलेट करूँ तो ये देखो ये रहा इतना लेंथ का स्प्रेड है ना. अगर यहाँ पे ब्लू वन का चेक करूँ तो इसका स्प्रेड यहाँ से यहाँ तक है ना. ब्लैक वन का चेक करूँ, इसका स्प्रेड यहाँ से यहाँ तक. ओके, तो जैसे जैसे ए इंक्रीज करोगे यहाँ पे क्या होगा, ये स्प्रेड जो है वो रिड्यूस होता जाएगा. ओके, okay, so after seeing this graph I must tell you about my experience in IIT Kanpur interview. After qualifying GATE 2013, I went to IIT Kanpur in the physics department, and they have asked in the GATE exam, after GATE exam, स्टूडेंट थिंक कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और उस समय मेरे मन में भी था कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क, एंड दे सिंपली आस्क मी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. व्हाट, जस्ट ड्रॉ दिस ग्राफ e minus e to the power minus t square, that is exponential of minus t square, that is a Gaussian pulse. They have asked almost 10 to 12 graph. Then they have asked what happened e to the power minus t minus 2
का होल स्क्वायर, ओके, e to the power minus mod of t, e to the power minus t, e to the power plus t, and such kind of graph, almost 10 to 12 graphs they have asked, okay, in the interview. And fortunately I qualified in that interview. I have drawn all the graph. So ये जरूरी नहीं है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप जो अभी पढ़ रहे हैं क्या है सर, ये कभी यूज होगा, यस, ये बेसिक्स हैं, ये फंडामेंटल्स हैं। मैंने बताया सिग्नल क्या है, सिग्नल इज एनी फंक्शन विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन। इन फ्यूचर आप देखोगे कि हर जगह आपको ग्राफ मिलेंगे, हर जगह आपको सिग्नल मिलेगा और यही यूज होगा, ठीक है। तो एक तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चेक करेंगे कि आप किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे हो तो क्या आप अगले सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचते हो, और दूसरा कि आपका ग्राफिक कैलकुलेशन कैसा है, ठीक है। तो ये आपको सोचना होगा। e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। e टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो वैल्यू 1 है। और ये जैसे जैसे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होता है। तो आप चाहे माइनस इन्फिनिटी रखोगे चाहे प्लस इन्फिनिटी रखोगे वो 0 होगा। और ये धीरे धीरे ये रिड्यूस हो रहा है जैसे जैसे आप इसमें जैसे जैसे आप टी में आगे बढ़ोगे ये क्या वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी, ओके। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को पूछते हैं, ओके। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो ये गॉसियन पल्स है, ओके। Now let's come to the sampling and sync signal. This is also very important when you study about digital communication. You will find the binary waves transmitted, their power spectral density is sync pulse, okay. So to handle this kind of pulse you have to understand first what is sampling and sync pulse. In my first job interview they asked also, when I said I am good in signals and systems, they have asked, okay, then tell me what is the relation between sampling and sync pulse, okay. So this is sampling signal, that is represented by SA bracket में T, capital SA bracket में T equals to, and it is sin T by T, okay. This is sin T by T, that is known as sampling pulse. So you can see this is octopus like signal, okay. This signal just इसका क्या एनवेलप क्या होगा, धीरे धीरे ड्रॉप होता जाएगा, आगे जाके ये ड्रॉप होता जाएगा। तो अब ये पल्स जो होगा, अगर मैं इसकी t इक्वल टू 0 पे वैल्यू पूछूंगा तो क्या आएगा, देन यू हैव टू अप्लाई the limit, okay. If you apply this limit, t tending to 0, sin t divided by t. So sin 0 is 0 and t equals to 0 पे ये भी 0 हो जाएगा, 0 by 0 फॉर्म आ जाएगा, ओके। सो 0 by 0 फॉर्म में हम क्या करते हैं, we'll apply एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर को डिफरेंशिएट करो और नीचे को डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो लिमिट, एंड देन अप्लाई दिस लिमिट। सो ऊपर क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0, साइन t को डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, cos t
और नीचे को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 रख दोगे अब क्या आ जाएगा 1। ओके, तो इसलिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू 0 पे 1 है। ओके, अब ये जीरो क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीरो कहाँ क्रॉस कर रहा है, तो इस फंक्शन को जीरो कौन कर रहा है, ये न्यूमरेटर। ओके, ये t तो जब तक इनफाइनाइट नहीं जा रहा तब तक ये फाइनाइट है, तो ऑब्वियसली ये इसको जीरो नहीं ले जा रहा है, ये इसको जीरो पे ले जा रहा है साइन t। ये फंक्शन जीरो कब होता है, तो साइन t जीरो कब होता है, when t इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m पाई। ओके, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो प्लस माइनस बोथ साइड। ओके, तो इसीलिए प्लस पाई पे जीरो क्रॉसिंग होगी, देन ये 2 पाई पे, देन 3 पाई पे, और ये धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। चूंकि ये एक इवन फंक्शन है, अगर मैं सैम्पलिंग माइनस टी करूँ तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस टी और अपॉन में माइनस टी। साइन माइनस टी क्या होता है, माइनस ऑफ साइन टी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, सिमेट्रिकल होना चाहिए वाई एक्सिस, तो ये दिख रहा है ये सिमेट्रिकल है। एक तरफ का भी अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल गया तो दूसरी तरफ हम बना सकते हैं उसका सिमेट्रिकल। अगर ये पाई पे जीरो क्रॉसिंग है तो ये माइनस पाई पे जीरो क्रॉसिंग होगा। सिमिलरली अगर 2 पाई पे जीरो क्रॉसिंग है तो ये माइनस 2 पाई पे जीरो क्रॉसिंग होगा। ओके, तो इसको भी हम देखेंगे डेस्मॉस पे, लेकिन उससे पहले चलो सिंक देख लेते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच रिलेशन ड्राइव करना है कि इन फ्यूचर कहीं आपको भी कोई एक ऐसा इंटरव्यूअर मिल गया जिसने ये पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। So what is sync pulse? This is sync of t. Sync of t is defined by sin pi t by sin of pi t divided by pi t. Okay, this is sync pulse. Okay, sync pulse is sin pi t by pi t, and if you put, this is sampling function, sampling t is defined by this. If in the place of t you put pi t, then every t is converted into pi t and pi t. So sampling pi t, this is sampling of pi t is nothing but sync t. Okay, sampling of pi t is equals to sync t. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी अगर हम लिमिट लगाएंगे t टेंडिंग टू 0 तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, और अब जीरो क्रॉसिंग कहाँ होगी, तो अब जीरो क्रॉसिंग कहाँ है, जीरो क्रॉसिंग कहाँ पे होगी, व्हेन पाई t आर्गुमेंट जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा m पाई के। ओके, where m started from not 0, because at 0 it is maximum, so we will not consider 1 2 3 and so on, all integers. So pi t, so this pi will cancel from this pi, so जीरो क्रॉसिंग कहाँ आ गई, जीरो क्रॉसिंग हो गया t इक्वल टू प्लस माइनस m। ओके, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये प्लस माइनस m, तो ये क्या 1 पे जीरो क्रॉसिंग है, देन 2 पे जीरो क्रॉसिंग है, देन 3 पे जीरो क्रॉसिंग है, देन 4 पे जीरो क्रॉसिंग है, देन 5 पे, इसी तरह नेगेटिव साइड, क्योंकि ये भी एक इवन फंक्शन है, -1 पे, फिर -2 पे, देन -3 पे, देन -4 पे। ओके, सो दिस इज सिंक टी। तो सिंक टी जो है इट इज नथिंग बट द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ सैम्पलिंग ऑफ टी बाय पाई। देखो ये फर्स्ट टाइम जीरो कब हो रहा है, पाई पे, और ये फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, 1 पे हो रहा है।
तो ये कंप्रेशन एक्सपेंशन ये अभी थोड़ी देर अगले लेक्चर्स में बात करेंगे कि कंप्रेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है। वैसे आप अभी मैं जब डेस्मॉस बनाऊंगा तो आप खुद समझ जाओगे कि क्यों ये कंप्रेस है। ओके, तो हमें ये दो फंक्शन बनाना है और मेरे साथ साथ आप भी बनाओगे, साइन टी बाई टी और सिंक साइन पाई टी बाई पाई टी। ओके, तो ये दोनों फंक्शन हम बनाएंगे और इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं एस ए, ले लेते हैं एस ए टी नाम रख लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में टी डिवाइड बाई टी के लिए यहाँ पे डिवीजन बटन है, तो आप डिवीजन बटन पे क्लिक करना, देन टी लिखना। ओके, तो यहाँ देखो एस ए डायरेक्ट नहीं लेगा, हमें एस टी रखना पड़ेगा। ओके, तो ये बन गया सैम्पलिंग सिग्नल। दिख रहा है, तो ये रहा सैम्पलिंग सिग्नल। देखते हैं इसका जीरो क्रॉसिंग कहाँ है। देखो पाई पे, इसका जीरो क्रॉसिंग कहाँ है, माइनस पाई पे। देन इसका जीरो क्रॉसिंग कहाँ है, टू पाई पे। इधर जीरो क्रॉसिंग किधर है, माइनस टू पाई पे। ओके, तो इस तरह से आप फंक्शन को देख सकते हो। ओके, आप ग्राफ की सेटिंग भी कर सकते हो अगर आपको ये वाई एक्सिस बहुत ही हाई नहीं रखना है। ओके, तो हम इसको चलो इसको रख देते हैं, वाई एक्सिस हम जानते हैं कहाँ से कहाँ तक आएगा। वाई एक्सिस इस वक्त आ रहा होगा 2 तक रख लेते हैं। ओके, तो ये 2 हो गया वाई एक्सिस। तो ये रहा सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग पल्स है। अब हम ड्रॉ करते हैं सिंक, तो इसे दूसरा नाम दे देते हैं, इसे दे देते हैं जेड ऑफ टी। ठीक है, दिस इज सिंक। तो वो क्या है, साइन ब्रैकेट में, ओके इक्वल साइन छूट गया, इक्वल साइन साइन पाई, पाई के लिए यहाँ पे पाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ नीचे पाई है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इनसाइड लिखते हैं पाई, देन टी। ओके, एंड देन डिवीज़न के लिए यहाँ पे डिवीज़न बटन है, और फिर ब्रैकेट में पाई इंटू टी। आप भी अपने ऐप पे बनाते जाइए। ठीक है, तो दिख रहा है कंपैरिजन। ठीक है, द ब्लैक वन इज सैम्पलिंग टी। So black one is sampling T, and this sink is blue red one. So this is sink T, sink pulse। तो यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या है, इसका जीरो क्रॉसिंग यहाँ पे जाके आया पहला, और इसका जीरो क्रॉसिंग यहाँ पे आया। so इसीलिए इसे कहते हैं कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ सैम्पलिंग सिग्नल। ओके, और वो कितने से कंप्रेस है, कैसे कंप्रेस है, वो हम जब स्केलिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके देख सकते हो सिंक पल्स कैसा दिख रहा है, वो इस तरह से। ठीक है, इसका जीरो क्रॉसिंग देखो कहाँ है, फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग। पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, क्लिक करो, यहाँ देखो इसकी फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग 1,0, 2,0, 3,0, -1,0, -2,0 एंड -3,0। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक मेरी सेटिंग में मैंने चेंज कर दी है, इस वजह से मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, वाई मैक्स मुझे चेंज करना होगा।
तो ये 1 है, ओके, इसकी वैल्यू 1 है। इज इट क्लियर? इस तरह से आप ग्राफिक टूल से सिग्नल्स को स्टडी कर सकते हो, उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल राइजिंग एंड एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल। सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था मेरा इंटरव्यू, एक्सपोनेंशियल राइजिंग एंड डिकेइंग सिग्नल, क्योंकि वो न्यूक्लियर का इंटरव्यू था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और ये एक्सपोनेंशियल से कुछ ज़्यादा ही प्यार था उन्हें, क्योंकि जो भी रेडिएशन होता है, जो भी आई थिंक मैं भूल चुका हूँ, तो उसमें क्या एक्सपोनेंशियल डिके होता है रेडिएटिंग मटेरियल में, ओके। तो इस टाइप का आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा। ई टू पावर माइनस 80 क्या था, ई टू द पावर 1 क्या होता है, ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर में इसको डाल के देखिएगा, दैट इज 2.7 समथिंग, ओके। सो ई जो होता है वो एक नेचुरल नंबर है, तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है, दिस इज ए कांस्टेंट, सो एक्सपोनेंशियल इज ए कांस्टेंट, तो ई टू पावर माइनस 80, और ये एक्सपोनेंशियल जो है ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, ई टू पावर माइनस 80 फॉर ए एनी पॉजिटिव वैल्यू, ओके। तो ई टू पावर माइनस 80 क्या कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ई टू पावर 0 करोगे क्या आ जाएगा 1, ई टू पावर इन्फिनिटी रखोगे तो 0 आ जाएगा, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, ठीक है, तो ये डिके हो रहा है। और ई टू पावर अगर यहाँ t की जगह माइनस इन्फिनिटी रख दोगे, कोई नेगेटिव वैल्यू, तो ये राइज होता जाएगा, ई टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई टू पावर प्लस इन्फिनिटी दैट विल गोस इन्फिनिटी, क्योंकि वैल्यू जो है ई जो है वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, ओके। तो इट राइजेस टू इनफाइनाइट एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ओके। चलो, अब ए एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, ये ग्राफ दिया गया है कि ई टू पावर माइनस 80 फॉर ए लेस देन 0, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव था, नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। सो ये क्या होगा ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियली राइज करने लगेगा, ओके, एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, लेकिन t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगी 1 होगा, ओके। e टू द पावर 80 है एक्सपोनेंशियल राइजिंग ग्राफ फॉर ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव रखा है नंबर, ठीक है, इसको भी हमें अभी डेसिमल्स पे देखना है, e टू द पावर 80 फॉर ए ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा ये एक्सपोनेंशियल राइज करेगा। आप वैल्यू पुट कर करके देख लीजिए, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस इन्फिनिटी होने मतलब 0 वैल्यू, देखो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू क्या है 0 है, 3 वैल्यूज चाहिए, फिर 0 पे वैल्यू क्या है आपकी ई टू पावर t इक्वल टू 0 रख देंगे, तो ई टू पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ई टू पावर प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बस इन 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करके देख लीजिए, और ये इस तरह का राइजिंग हुआ, ओके। अब ई टू पावर प्लस 80 है, लेकिन वैल्यू ए की जो है वो नेगेटिव है, ओके, ए की वैल्यू जो है नेगेटिव है, तो क्या आएगा वो डिके कर जाएगा, ओके। ए की वैल्यू जो है नेगेटिव है, तो ये अल्टीमेटली जो पावर में अगर वो टोटल क्वांटिटी नेगेटिव है तो वो डिके करती है, अगर वो पॉजिटिव है तो राइज करेगी, ओके। इस तरह से ये ग्राफ आता है, इसको भी डेसिमल्स पे चलो स्टडी करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या था, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी,
ओके, तो हमें इससे नाम देना होगा, नहीं x नहीं देना है, s ऑफ t दे देते हैं। ओके, तो देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी, यानी यहाँ पे मैंने a को पॉजिटिव रखा है, e टू द पावर माइनस टी, इस तरह का ग्राफ है, कैसा डिके करता है। ओके, तो अभी जब नेटवर्क में आप पढ़ोगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, एक्सपोनेंशियल डिके। ओके, तो दूसरा ग्राफ बनाते हैं, एस टू टी दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस टी। तो ग्रीन वन देखो, ये जस्ट अपोजिट है, ये राइज कर रहा है, देखो कितनी तेजी से राइज कर रहा है, और दोनों का क्रॉसिंग कहाँ है, 1 पर है। ओके, दोनों की क्रॉसिंग कहाँ है, 1 पर क्रॉस करेंगे। ओके, दोनों की क्रॉसिंग 1 पे। तो पहला क्या है, e टू द पावर माइनस टी, वो क्या होगा, डिकेइंग, मतलब डिकेइंग किस रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे आप t पे आगे बढ़ते जाओगे x एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा, वो डिके करेगा, वो घट रहा है। ठीक है, ये ऐसे बिहेवियर को शो करता है। ओके, जब आप अभी आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट पढ़ोगे तो आप इस टाइप के बिहेवियर को देखोगे। ओके, दूसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल राइजिंग सिग्नल, ये देखो जैसे जैसे टी बढ़ रहा है ये राइज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल राइजिंग सिग्नल। ओके, अब थोड़ी सी स्टडी। ओके, ई टू द पावर माइनस टी हो गया, अब इसे भी माइनस टी ही कर देते हैं। ठीक है, इसको भी माइनस टी कर देते हैं। पहले सिग्नल को रख देते हैं नाम S1t, e टू द पावर माइनस टी है, यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2t रख देते हैं। ठीक है, अब दोनों सिग्नल ऑन कर लेते हैं, और एक थर्ड सिग्नल रख लेते हैं S3t इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 3t। ओके, तो अब ये तीन ग्राफ आपको दिख रहे हैं। तो अब ये बताओ इनमें से कौन ज्यादा फास्ट डिके कर रहा है, और t ग्रेटर देन 0 के लिए अगर मैं पूछूं, t पॉजिटिव के लिए, ठीक है, यहां से अगर देखोगे तो यहां से आपको केवल ग्राफ t ग्रेटर देन 0 के लिए दिखा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने a को एक यानी पॉजिटिव क्वांटिटी रख देता हूं, और उसको मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, a इक्वल टू 1 था तो ये ब्लू वाला ग्राफ आया, a इक्वल टू 2 था तो ये ग्रीन वाला ग्राफ आया, a इक्वल टू 3 था तो ये ब्लू वाला वायलेट वाला ग्राफ आया। तो कौन फास्ट डिके कर रहा है, ऑब्वियसली दिस वायलेट वन, ये क्या बहुत जल्दी जल्दी डिके कर रहा है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि दिस वन डिकेस स्लो, ये ग्रीन वन उसके रिस्पेक्ट में, ब्लू के रिस्पेक्ट में फास्ट डिके कर रहा है, लेकिन वॉयलेट के रिस्पेक्ट में स्लो डिके कर रहा है, और सबसे जो फास्ट डिके कर रहा है वो e टू द पावर माइनस 3t, यानी ये डिके कर रहा है। ओके, क्योंकि ये भी आपके काम आएगा जब आप टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। सिस्टम के एनालिसिस हम जब करते हैं तो हमें जानना होता है इस एक्सपोनेंशियल बिहेवियर को देखिए कि कौन सा सिस्टम कितना फास्ट, इसका बिहेवियर कैसा है, तो वहां पे ये काम आता है। ओके, तो हमें पता है कि अगर e टू द पावर माइनस टी है, ये माइनस 2t है, ये माइनस 3t है, इनमें से किसका ग्राफ कैसा होगा, ये ज़्यादा तेज, जितना ज़्यादा के एक्सपोनेंशियल में पावर होगी वो उतनी तेज डिके करेगा। ओके, इस पॉइंट को नोट करके रख लो। ओके, नाउ कम टू द periodic complex exponential and sinusoids. Okay, so this is periodic complex exponential and sinusoid है। तो यहाँ पे क्या है, xt, वो क्या है, e टू द पावर j ओमेगा नॉट t है। ये क्या होता है, इट इज पीरियोडिक विथ 2 पाई बाई ओमेगा नॉट।
जब हम पीरियोडिक सिग्नल पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे पीरियोडिक कैसे निकालते हैं। ओके, इसकी प्रूविंग करेंगे। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? अगर रियल पार्ट ऑफ एक्स टी करेंगे, इसको हम कैसे आयलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, e टू द पावर j ओमेगा नॉट t है। तो इसको एलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? cos ओमेगा नॉट t प्लस j साइन ओमेगा नॉट t। ओके, तो cos ओमेगा नॉट t प्लस j साइन ओमेगा नॉट t। तो रियल पार्ट क्या होगा? e टू द पावर j ओमेगा नॉट t। वो क्या आ जाएगा? दिस वन। और इमेजिनरी पार्ट वो साइन ओमेगा नॉट टी। तो यही लिखा है, रियल पार्ट ऑफ एक्स टी क्या होगा? कॉस ओमेगा नॉट टी होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो साइन ओमेगा नॉट टी है। ओके, अब एक और जो फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर होगा कंट्रोल सिस्टम में, जब आप सिस्टम एनालिसिस करोगे तो इस टाइप का एक ग्राफ इनकाउंटर होता है, दैट इज e टू द पावर आर टी कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। यहाँ देखो दो सिग्नल्स का मल्टीप्लीकेशन हो, एक ये है एक्सपोनेंशियल ई और दूसरा है साइनोसॉइडल कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉस ओमेगा नॉट टी कैसा ग्राफ होता है? ठीक है, एक्सपोनेंशियल राइजिंग ग्राफ तो आप देख चुके हैं। अगर आर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये राइजिंग ग्राफ होगा। ओके, दिख रहा है ये राइजिंग है, ठीक है, ये राइज कर रहा है। और अंदर क्या है इसके, जो ये एनवेलप बनाता है e टू द पावर आर टी, और ये क्या होगा? अंदर साइनोसॉइड होगा। ऑब्वियसली इट इज नॉट पीरियोडिक, दिस इज साइनोसॉइड बट इट इज नॉट पीरियोडिक बिकॉज वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है, राइज कर रही है। ओके, तो यहाँ पे ये इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो कॉस ओमेगा नॉट टी पहले कैसा ग्राफ होता है? चलो इसकी स्टडी रोकते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। S1t ले लेते हैं, कॉस फंक्शन ले लेते हैं, कॉस ओमेगा नॉट रख लेते हैं, चलो 2t। ओके, तो दिस इज कॉस 2t ग्राफ। तो हम जानते हैं क्या, कॉस जीरो पे क्या होता है वैल्यू? 1 एंड इट गोज टू -1 एंड देन अगेन 1। ओके, ये फर्स्ट जीरो कहाँ ओकर होता है? π/2 पे, और फिर सेकंड जीरो पाई 3π/2। ओके, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और इस तरह से ये ऑसिलेशन चलता है। तो इसका देखो, अगर एनवलप मतलब इसका, अगर मैं अपर एनवलप कहने मतलब अगर मैं अपर कवर इसका देखूं, तो अगर मैं इसको कनेक्ट करूं अपर कवर को, तो मुझे एक कांस्टेंट लाइन दिखेगी। ठीक है, अब जरा मैं इस सेकंड सिग्नल को बनाता हूं, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ -t इंटू कॉस ऑफ 2t। ओके, तो पहला वाला एडिट करते हैं, तो ये रहा इसका ग्राफ। ओके, यू कैन सी कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये बहुत ही तेजी से डिके कर रहा है। अगर मैं इधर जूम करूंगा तो ये आपको इस टाइप का डिकेइंग ग्राफ दिख रहा है। ओके, तो इसका आई थिंक मुझे बढ़ा देना चाहिए फ्रिक्वेंसी, 10t कर देते हैं, यहाँ पर भी 10t कर देते हैं, मतलब वॉच। ओके, तो दिख रहा है, अब ये ग्राफ आपको दिख रहा है क्लियर?
ये कैसे डिके करता जा रहा है इसका एनवेलप। ओके, इसका एनवेलप डिके करता जा रहा है और ये इस टाइप का अंदर कैसा है, साइनसॉइडल है। तो वो आपको एनवेलप दिखता नहीं, वो तो मैंने बस आपको समझाने के लिए कि इसके कवर को अगर मैं मिलाऊंगा तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा। अगर इसके कवर को मैं मिलाऊंगा मुझे एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल मिलेगा, ये वाला e⁻⁻t। और ये क्या है, ये कॉस है, ये जो ऑसिलेशंस है तो इसे कहते हैं डिकेइंग ऑसिलेशन। ठीक है, डिकेइंग, डैम्प्ड ऑसिलेशन, शायद मैंने लिखा भी होगा। ओके, ये जो रिड्यूस वाला है जब आर निगेटिव है, ठीक है, तो इसे कहते हैं, इस ऑसिलेशन को कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, डैम्प्ड साइनसॉइडल ऑसिलेशन। ओके, तो इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा। अब इसी में अगर मैं पॉजिटिव कर दूं इसको, पहले वाले को, तो क्या हो जाएगा, ये देखो, अब ये राइजिंग ऑसिलेशन होगा, लगातार ऑसिलेशन। अब इसका एनवेलप मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला e⁻t मिलेगा और उसके अंदर क्या होगा, ये cos t। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से बढ़ता है तो ये वैल्यूज इसीलिए दिखा नहीं पा रहे। ओके, तो ये दिख रहा है, इस टाइप की राइजिंग एनवेलप, राइजिंग साइनोसॉइड ग्राफ मिल रहा है। ओके, तो इस ये है, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक सिग्नल्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सिग्नल ऑपरेशंस की। ठीक है, तो ये है सिग्नल्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए यूजिंग डेस्मॉस डिफरेंट ग्राफिक्स को समझने के लिए, क्योंकि ये हैंडमेड ग्राफ्स हैं, इनमें थोड़ा सा आपको एम्बिग्यूटी हो सकती है ग्राफ्स की। अगर आपको समझना है एग्जैक्टली आप डेस्मॉस पे इसको ड्रॉ करके देखिए। ओके, थैंक यू।